everyone, welcome back to channel fresh new video. मेरा नाम है स्वागत है आपका परल व्लॉग्स पे. So today I have a very special bike with me, the Honda CBR 650R, and this is the update 2025 variant. And अगर हम बात कर ले अपडेट्स के बारे में, so now Honda has provided the e-clutch technology, electronic clutch technology with this bike. So e-clutch technology जो ऑलरेडी प्रेजेंट थी इन द इंटरनेशनल मार्केट, बट रिसेंटली होंडा ने इंडिया में इस फीचर को लॉन्च कर दिया है एंड इट इज़ अ क्वाइट यूजफुल फीचर एट दिस प्राइस पॉइंट. सो वील टेक अ कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द specifications and features present in the Honda CBR 650R and whether you should buy it in 2025 or not. So without wasting any further time, let's ride straight into this beast. So talking about the front design fascia of the CBR 650R, so it has always carried the design from the bigger brother, the Fireblade CBR RRR. The design looks quite impressive, quite stunning. And अगर हम front design fascia के बारे में बात करें, so here you get a complete LED reflector based headlamp setup with LED DRLs, LED turn indicators with hazard function. And यहाँ पर आपको additional एक और feature मिलता है, always on headlamps and turn indicators का. So while you turn on your ignition, आपके जो headlamps and indicators है वो कुछ इस तरह की still on position में आपको present होते हुए मिल जाते हैं. And जितनी भी upcoming Honda की बाइक्स आएंगी उसमें आपको ये फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है. So at the front you get a workable air ducts. यहाँ पर कुछ इस तरह के air ducts जो आपको present होते हुए मिल जाते हैं. You get Showa SFFB suspension at the front, upside down USD forks मिल जाते हैं with 120 section Dunlop tires at the front. and यहाँ पर आपको twin disc setup मिलता है of 310 mm size. अगर हम बात कर ले about the wheels, so here you get wide spoke aluminum wheels which makes the bike even more lighter. And front section से बात करें, so here you get a complete front visible visor with these types of rear view mirrors and the front design looks absolutely stunning. एक आपको sporty vibe and एक aggressive look जो है वो complete मिल जाता है with the Honda 650R. And talking about the e-clutch technology, so e-clutch technology जो है वो आपको completely यहाँ पे प्लेस होते हुए मिल जाती है. जो यहाँ पर आपको सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिलते हैं जो इंगेज एंड डिसएंगेज करते हैं क्लच को, एंड आपको सिमिलरली एक उस तरह की जो परफॉर्मेंस है, जो आउटपुट है वो आपको प्रोवाइड करके देने वाली है. सो होंडा ई क्लच टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक क्लच टेक्नोलॉजी है. सो यू कैन चेंज योर गियर्स विदाउट यूजिंग द क्लच. आप अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग द क्लच. आई मीन Now let's talk about some questions that might arise in your mind about the Honda CBR 650R. So the first and frequently asked question is that, is it an automatic? No, in simple words, this bike is not automatic. It comes with a proper clutch lever and a gear shift pedal. मतलब simple बात ये है कि the bike will never shift gears on its own. You have to shift every single time manually. It feels a bit closer to a bike with a quick shifter, but automatic बिल्कुल नहीं है. Yes, Honda does have some bikes with DCT dual clutch transmission where you don't even need your foot to shift gears, but the CBR 650R doesn't come with that system. The next question, what's the difference between e-clutch and quick shifter? So this is one of the most common confusions, so let me explain in simple words. So quick shifter lets you shift up and down without the clutch, but when it comes to neutral, you still need the clutch. E-clutch ये एक ज़्यादा एडवांस है. You can go in or out of neutral without clutch, which is not possible on a quick shifter. Suppose you are at a red light in first gear. With e-clutch, you don't need to keep holding the clutch. The bike won't stall. But with a quick shifter, you'll have to either press the clutch or put it in neutral, वरना बाइक बंद हो जाएगी. And yes, with e-clutch, you can even take off in first gear without using the clutch, which is something quick shifter cannot do. और अगर हम बात करें जब आपकी जो e-clutch टेक्नोलॉजी जब इंगेज रहती है तो आपकी क्लच जो है कम्प्लीटली फ्री हो जाती है, और वहीं पे जब डिसएंगेज रहती है तो वो नॉर्मल फ्री प्ले जो है आपको देखने को मिलने वाला है. सो अगर हम बात कर ले अबाउट द फ्यूल टैंक कैपेसिटी, सो हियर यू गेट 15.4 लीटर्स ऑफ कंप्लीट फ्यूल टैंक कैपेसिटी. एंड होंडा की जो ई-क्लच की प्लेसमेंट है, जो सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की प्लेसमेंट है, वो आपको कंप्लीट इस यूनिट में प्रोवाइड कर दी जाती है. सो टॉकिंग अबाउट द इंजन स्पेसिफिकेशंस, सो हियर यू गेट 649cc inline 4-cylinder 16-valve DOHC engine which produces 95 horsepower and 63 Nm of torque. So
पावर टू वेट रेशियो भी आपको एक बेटर मिल जाता है इसमें में, एंड द पावर इज एट द मोस्ट। सो यहाँ पर आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिलता है विच साउंड्स रियली क्वाइट स्वीट। एंड अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे कंप्लीट फ्लैट रेडिएटर सेटअप जो फ्रंट में मिल जाता है इनलाइन 4 सिलेंडर। तो आप जितने भी हेडर पाइप है वो एट द फ्रंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो देखने में काफी ज्यादा ही एग्रेसिव आपको लगने वाले हैं। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ऑफ द बाइक इज टॉप नॉच। यहाँ पर आपको एक होंडा की रिलायबिलिटी मिलती है, द बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच। जितने पार्ट्स की बारे में हम बात करें, फुट पैक्स, अबाउट द कंप्लीट बॉडी, यहाँ पर आपको एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी जो है वो ऑफर करती है होंडा, एंड होंडा की रिलायबिलिटी आपको मिलती है इस बाइक के साथ में। सो यू गेट ट्विन पार्ट फ्रेम एज वेल। यहाँ पर कुछ इस तरह कंप्लीट डिजाइन फेशिया जो मिलता है, यहाँ पर आपको एल्यूमिनियम स्विंग आर्म्स जो है वो मिल जाते हैं, and the rear disc size is of 240 mm, Nissan calipers, dual channel ABS, assistant slipper clutch, जैसे सारे फीचर्स एंड फंक्शंस जो है वो आपको मिल जाते हैं with the Honda 650R. So here at the rear you get 180 section Dunlop tires with tire stickers of CBR written in it as well, and यहाँ पर आपको वाइड शेप alloy wheels जो है एल्यूमिनियम वो आपको मिल जाते हैं। And talking about the rear section, so this bike has a very aggressive rear section as well। यहाँ पर आपको एक्सटेंडेड पार्ट्स जो है वो आपको इस टेल सेक्शन में प्रोवाइड होते हुए मिल जाते हैं। यू गेट एलईडी नंबर प्लेट लाइट एज वेल, नंबर प्लेट सेक्शन एरिया, नंबर एलईडी टर्न इंडिकेटर्स, एंड द एलईडी टेल लैम्प्स लुक्स क्वाइट इंप्रेसिव। कुछ इस तरह का कंप्लीट डिजाइन जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। एंड टॉकिंग अबाउट द अदर पार्ट, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का ओपन कंप्लीट चेन स्प्रोकेट सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्प्रोकेट कंप्लीटली ओपन मिलता है, जिस वजह से यू हैव टू रेगुलरली मेंटेन द चेन, जिससे उसकी लाइफ अच्छी रहे। यहाँ पर आपको कुछ तरह कंप्लीट सेटअप जो है मिल रहा है, साइड स्टैंड मिल जाता है, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है। कुछ इस तरह के आपको कंप्लीट जो आपके गियर लिवर्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। एंड हियर यू गेट एडजस्टेबल ब्रेक लिवर्स, बट यहाँ पे क्लच के लिए आपको एडजस्टमेंट जो है वो नहीं मिलती है। सो मैं आपको ई क्लच के बारे में बता रहा था, फ्री प्ले के बारे में। सो अभी ई क्लच इंगेज है, तो आप देख सकते हैं क्लच की जो फ्री प्ले है कुछ इस तरीके से रहती है। वहीं पर अगर जब ये जब मैं इसकी इग्निशन को ऑफ कर दूं तो इसकी जो ई क्लच है वो अभी बंद हो चुकी है। तो यहाँ पर आपको नॉर्मल जो क्लच की जो प्ले है वो आपको इसमें बाइक के साथ देखने को मिलने वाली है। नाउ टॉकिंग अबाउट द फ्रंट डिजाइन फेशिया, अगर राइडर डिस्प्ले के बारे में बात करें, सो ये यू गेट 5 इंचेस ऑफ TFT डिस्प्ले, फुल कलर डिस्प्ले, जो आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन थ्रू करके देने वाली। उससे पहले अगर हम बात करें हैंडल बार डिजाइन की, सो ये यू गेट अ क्लिप ऑन हैंडल बार। सो क्लिप ऑन हैंडल बार होने के बावजूद भी आपको यहाँ पर एक अपराइट पोजीशन मिलता है, तो आप इजीली कंफर्टेबली अपनी बाइक को राइड कर सकते हैं। आपके जो स्ट्रेन रहता है वो आपके ना हाथों पे रहता है ना ही आपके बैक पे रहने वाला, तो आपको एक अच्छा कंप्लीट फील जो है वो वाइल राइडिंग द बाइक आपको मिलने वाला है। सो दिस बाइक लैंड्स इन अ स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी। वी couldn't call it a सुपर स्पोर्ट बाइक। ये स्पोर्ट्स टूरर में ज्यादा परफेक्टली लैंड करती है, क्योंकि यहाँ पर आपको एक यूजेबल पिलियन सीट भी मिल जाता है, एंड ये एक वर्किंग यूजेबल सीट्स है, जो जिसकी वजह से आपकी जो पिलियन जो आपके साथ बैठने वाला है वो भी कंफर्टेबली ट्रैवल कर सकता है। जो पिलियन सीट है वो थोड़ा सा ऑन द स्टिफर साइड है, लेकिन जो राइडर के लिए जो सीट्स है वो काफी फर्म है, काफी सॉफ्ट है, तो आपको एक अच्छी कंफर्टेबल कुशनिंग जो है वो कंप्लीट प्रोवाइड करने वाली है। अब बटन्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको पास लाइट बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको अपनी MID की कंप्लीट जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करने के बटन मिलता है। यहाँ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल के जो स्विचेस है वो मिल जाते हैं। सो दिस बाइक्स कम्स विद ट्रैक्शन कंट्रोल एज वेल। अब आपको कुछ इस तरह की हॉर्न जो है वो मिलती है, इंडिकेटर्स की बटन की प्लेसमेंट मिलती है, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड जो कंप्लीट आपकी इग्निशन स्टार्ट स्टॉप बटन है वो मिलती है, प्लस आपको 1000 इंडिकेटर्स के जो बटन है वो यहाँ पर मिल जाते हैं। डुअल जो एक्सीलेटर केबल्स है वो मिल जाते हैं, जिस वजह से आपको कंसिस्टेंट एक स्टेबल क्लच एक्सीलेटर रिस्पॉन्स जो है वो ऑलवेज मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं अबाउट दिस कंप्लीट डिस्प्ले। तो यहाँ पर आपको कुछ तरह के बटन्स मिलते हैं, यहीं से अपनी इन्फॉर्मेशन को आप स्क्रॉल कर सकते हैं, आप अपनी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी चेक कर सकते हैं, अपनी सेटिंग्स के अंदर जा सकते हैं, एंड यहाँ पर भी आपको मल्टीपल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे डिस्प्ले करके देने वाली है। प्लस आप अपनी ई क्लच टेक्नोलॉजी को वो एट किसी पॉइंट ऑफ टाइम भी डिसएंगेज कर सकते हैं। आपको ई क्लच टेक्नोलॉजी को यूज नहीं करना है, आपको नॉर्मल क्लच को यूज करना है, मैनुअली अपने गियर शिफ्ट करने हैं, उस वजह से आप यहाँ पर इजीली अपने ई क्लच टेक्नोलॉजी को जो है वो ऑफ कर सकते हैं, इसकी कंप्लीट लेआउट को चेंज कर सकते हैं। एंड दिस डिस्प्ले हैज बीन टेकन स्ट्रेट अवे फ्रॉम द NX 500, वो सेम डिस्प्ले जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाली है, एंड कुछ इस तरह की कंप्लीट लुक्स एंड फील जो है वो मिल जाती है विद द Honda CBR 650R। एंड एट द रियर यू गेट अ मोनोशॉक सस्पेंशन विद 10 स्टेप preload adjustment। So कुछ इस तरह कंप्लीट प्रोफाइलिंग जो है वो आपको मिलती है विद द Honda CB 650R। Now talking about the ground clearance, the curve weight and the exhaust sound of this big beauty, so let's move forward into it। So now talking about the engine specifications, the ground clearance, the curve weight and the exhaust sound of this CBR 650R। So first of all you get a 810 millimeters of seat height। So अगर आप एक शॉर्ट राइडर भी तो यहाँ पर आपके पास एक बढ़िया कंफर्ट पोजिशनिंग रहती है, तो आप इजीली अपने बाइक को जो है वो हैंडल कर सकते हैं। So here you get 130 millimeters of complete ground clearance, and this bike weighs around 211 kgs। So now talking about the engine specifications, so here you get a inline 4-cylinder 649cc 16-valve DOHC engine which produces
95 हॉर्स पावर एंड 63 Nm ऑफ टॉर्क. सो द पावर इज एट द मोस्ट. यहाँ पर आपको बढ़िया पावर फिगर्स जो है वो मिल जाते हैं. नाउ टॉकिंग अबाउट द एग्जॉस्ट नोट ऑफ दिस बिग ब्यूटी. सो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कुछ इस तरह का एग्जॉस्ट नोट मिल जाता है विद द CBR 650R. एंड यहाँ पर आपको इनलाइन 4 सिलेंडर मिलता है, जिस वजह से यहाँ पर आपको स्वीट साउंडिंग एग्जॉस्ट सेटअप जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है. एंड दिस बाइक स्ट्रेटली कम्पीट्स विद द Suzuki GSX 8R, द Daytona 660. एंड वहाँ पर आपको अगर 6R की अगर हम बात करें, 8R के बारे में बात करें Suzuki GSX 8R की, तो वहाँ आपको ट्विन पैरेलल इंजन मिलता है. लेकिन विद द Honda CB 650R यहाँ पर आपको इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन जो है वो ऑफर होता हुआ मिल जाता है. सो दिस बाइक इज अ कंप्लीट गो टू बाइक. अगर आपको एज अ डेली कम्यूटर भी यूज करना है तो आप इजीली इस बाइक को डेली कम्यूटर भी यूज कर सकते हैं. अगर आपको ऑफिस जाना है, डेली राइड्स पे जाना है, तो आपके लिए बाइक ये परफेक्ट बनी हुई है. यहाँ पर आपको अच्छा पावर टू वेट रेशियो जो है वो मिल जाता है. प्लस अगर हम एवरेज के बारे में बात करें, सो यू कैन इजीली एक्सपेक्ट 20 kmpl माइलेज विद दिस बिग बीस्ट. यहाँ पर आपको एक अच्छी माइलेज फिगर जो है वो ऑफर करती है द Honda 650R. So this was the complete overlook of this bike. I hope you guys found this video informative. अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूले. Till then, take care, ride safe, ride hard, all of the protective gears. This is Varun. जय हिंद.